गाइस 3-4 दिन पहले मैंने आपको एक H1B फ्रॉड वाली वीडियो दिखाई थी जिसमें एक सारा गोंजालेस जो एक टीवी पे रिपोर्टिंग करती है, न्यूज़ जर्नलिस्ट है काइंड ऑफ, वो निकली थी डैलस में और कुछ दरवाजे पे नॉक किया। उसने कई एक्सपोज करे कई स्कैम जो चल रहे हैं यहाँ पे डैलस में, टेक्सास में। उसकी फॉलो वीडियो दिखाता हूँ और आप देख के ना आप भी हैरान हो जाओगे कि क्या क्या दिखा रही है आज वो। और पहले एक बार मैं ये वाली वीडियो दिखा दूँ आपको, फिर आपको मेन टॉपिक पे लेके जाऊँगा जो है कि टेक्सास में H1B, टेक्सास स्टेट में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में और जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं वहाँ पे H1B वीज़ा बैन हो गया है, बंद हो गया है फॉर सम टाइम। लेट मी शो यू दिस रिपोर्ट फर्स्ट। I want to get to some good news. We did it. We are forcing the government to take action on these scammy H1B visas. You guys are like, oh my gosh, you talk about this all the time. Well, guess what? Public pressure works. Let me read you Governor Abbott's latest press release here in the state of Texas. Governor Abbott launches investigation into H-1B visa abuse. Governor Greg Abbott today directed all state agencies and universities to freeze new H-1B visa petitions and launch a review of current H-1B visa program use. तो गवर्नर एबट जो यहाँ का टेक्सास का गवर्नर है उसने साफ साफ बोल दिया है 2 दिन पहले कि नो न्यू H1B वीज़ास फॉर टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटीज़, बेसिकली जो टेक्सास की स्टेट की कॉलेजेस हैं एंड जो गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, टेक्सास की जो कंपनीज़ हैं, स्टेट की कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ की बात नहीं कर रहे। अब जैसे आपने कुछ टाइम पहले देखा कि फ्लोरिडा में भी जो डिसेंटो करके जो उनका गवर्नर था उसने भी मना कर दिया था कि स्टेट में, स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी और जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ एंड जो वहाँ के जो गवर्नमेंट कंपनीज होंगी वो नहीं लेंगी H1B वीज़ा। अब 2 स्टेट हो गई हैं, पहले एक स्टेट थी फ्लोरिडा, अब 2 स्टेट हो गई हैं, टेक्सास एंड फ्लोरिडा। There were 4,000, actually, let me give you 2025. There were 41,571 beneficiaries or individuals approved for H-1B visas. That was across 6,137 companies. And I want you to look at these top 10 companies here, okay? Cognizant, Infosys Limited, Oracle, Cognizant, again, for some reason, I'm not sure why they're listed twice, Tesla, Charles Schwab, AT&T, KPMG, Hewlett-Packard, and Caterpillar. And just in those top 10 companies here, that's 12,911 jobs taken away from Americans, from Texans. None of those companies Greg Abbott has any control over. That is a private industry, that is the private sector. तो पिछले साल 2025 में जैसे कि सारा ने दिखाया 41,000 न्यू H1B अप्लाई हुए थे, एप्लीकेशन आई थी ओनली इन टेक्सास पूरे साल में। न्यू, पुराने जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, जो न्यू एप्लीकेशन आई थी ओनली इन टेक्सास 1 स्टेट में 41,000 आई थी, जिसमें से टॉप आपने देखा कि कितने लाइक टॉप 10 में आपने देखा कौन कौन सी कंपनीज हैं और काफ़ी सारी वेल रिकॉग्नाइज कंपनीज, राइट? कॉग्निजेंट, इन्फोसिस। और जैसे किसने एक बात बोली कि ये सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, इनमें गवर्नर का कोई भी हाथ नहीं है, तो वो इन पे अभी बैन नहीं कर सकता। वो जो पूरी गवर्नमेंट की, पूरी अमेरिका की लॉ होगी वो गवर्न करेगी। टेक्सास का जो गवर्नर है वो सिर्फ टेक्सास को कंट्रोल कर सकता है, पूरे अमेरिका को कंट्रोल नहीं कर सकता। Now, I mentioned that we have these Indian news outlets that are paying real close attention to what we're doing, don't like it, try to like conflate some of what's going on and some of what we're saying. They're like, well, it is true that you can register a business at a home. That's not what we're saying. That's not what we're saying the issue is. Of course, I realize you don't want to call out the fraud, but I want to play some of this Indian news outlet responding to the investigation. Watch. Sara Gonzales released a video that quickly went viral. She claimed some companies in Texas were abusing H-1B visa program. Talent is insufficient. One of the most dramatic moments in this video showed Gonzales knocking on the door of Hari Madiraju, the visa contractor for Qubit's tech system. I don't know if you guys caught that, but first of all, the Sara Gonzales was really funny. And then what did they do? They just literally put a random picture of some white girl when they talk. Like, that's not me. That doesn't even look like, I'm so glad I have a side-by-side here. That doesn't even look like me. I don't, where did you get that? Where did that picture come from? This is not me. That's like a random AI, random white chick. Okay, guys.
Okay. These are the super skilled people that we have to bring here. They can't even get the right picture. तो सारा भी एक इंडियन जो अपना टाइम्स एक्सपी जो चैनल है जो इंडियन न्यूज़ दिखाता है और जो बाय द वे बिना सोर्स के कुछ भी कहानियाँ बनाता रहता है उसकी दिखा रही है। कोई भी एक रैंडम बंदी दिखा के बोल रही है सारा है, तो वो भी इन्होंने पकड़ ली, क्योंकि इंग्लिश में बनाई ना उन्होंने, तो इन्होंने भी पकड़ ली बात। बट एक चीज़ क्लियर है, जो सारा ने जो इन्वेस्टिगेशन करी थी 4-5 दिन पहले जो वायरल हो चुकी है बहुत, उसके बाद से काफ़ी नज़र में आ चुका है यहाँ पे जो H1B फ्रॉड, H1B स्कैम चल रहा है। काफ़ी लोग कंसल्टिंग कंपनीज बस लेबर लाए जा रहे हैं, यहाँ के वर्कर्स को रिप्लेस कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे सस्ते में मिल जाती है, इंडिया से जो लेबर आती है सस्ते में मिल जाती है, यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको हाई कॉस्ट देने पड़ता है, इसलिए कंपनीज भी ले लेती है उनको। तो ये नज़र में आ चुका है यहाँ के गवर्नमेंट के भी, और इसी वजह से यहाँ का जो गवर्नर है उसने फ्रीज कर दिया है H1B, शट डाउन कर दिया है अंटिल May 2027। न्यू एप्लीकेशंस, पुरानी नहीं, पुरानी जो चल रही है वो चल रही हैं, नई नहीं लगेंगी। ओनली इन स्टेट, जो टेक्सास की स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैंपस है, कॉलेजेस हैं, और जो कंपनीज जो टेक्सास की स्टेट कंट्रोल करती है उनमें, जो गवर्नमेंट की कंपनीज है टेक्सास की उनमें, और ऑब्वियसली एक गवर्नर वही कंट्रोल कर सकता है, पूरी अमेरिका तो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब वो 2 स्टेट्स हो गए हैं, एक फ्लोरिडा और अब टेक्सास। Governor Abbott is ordering Texas public universities and state agencies to freeze H-1B visa processes. Right now, Governor Abbott is pausing public schools and state agencies from filing new visa applications. This week, Governor Abbott made the announcement directing all public universities and state agencies to freeze new H-1B visa applications. Governor Abbott was on the Mark Davis radio show talking about his plan. We looked at federal data and it showed Irving-based Cognizant Tech Solutions is the largest employer of people on the visa in Texas. American Airlines, based in Fort Worth, and AT&T, based in Dallas, are also in the top 25. When it comes to public education, Dallas ISD has 230 employees on the visa. Texas A&M, 214 employees. तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई अगर ठीक है हमें क्या फ़र्क पड़ता है, गवर्नमेंट की कंपनी है, प्राइवेट में तो अभी चल रहा है ना वीज़ा, तो यहीं पर आपको आंसर मिल गया। जो टॉप 10 में जो इन्होंने 2-3 बताई ना, जैसे डैलस ISD 240 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर H1B पे, जो दूसरी बताई इन्होंने समथिंग 200 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 कंपनी में ही 2 जगह पे ही 400 लोग काम कर रहे हैं। ऐसे अगर पूरी टेक्सास की स्टेट में देखेंगे ना तो प्रीटी श्योर नंबर थोड़ा तो बड़ा होगा। अब प्राइवेट कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं लोग जो वीज़ा पे काम कर रहे हैं, बट टेक्सास की स्टेट में या ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में भी थोड़े लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। फ़र्क तो पड़ेगा। अब आपको कॉइन का दूसरा साइड दिखाता हूँ। ये था कि जो स्कैम चल रहा है और ये अमेरिका की जॉब जा रही हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता हूँ कि कई लोग बोल रहे हैं इससे अमेरिका को ही फ़र्क पड़ेगा, इट इज़ गोना हर्ट अमेरिकन इकोनॉमी। आपको अगली वीडियो दिखाता हूँ, वो देखो। और Texas would turn its back on incredibly talented people here isn't just bad for those people, it's bad for everyone in Texas. And limiting the H-1B visa, restricting the ability for public sector institutions to use it here is going to hurt all Texans. तो जैसे कि ये बंदा बोल रहा है इट्स गोना हर्ट ऑल टेक्सन्स, मतलब अगर हम फ्रीज कर देंगे, बंद कर देंगे, तो जो टैलेंट होगा, जो बढ़िया टैलेंट, जो बढ़िया लोग होंगे जिससे हमारी कंट्री को, हमारे यहाँ की कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता था, वो नहीं आ पाएगा। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। वीज़ा पे जो H1 वीज़ा पे लोग आते हैं, फ्रॉड भी हो रहा है तो अच्छे लोग भी आते हैं। मुझे लगता है कि ना एक इन्वेस्टिगेशन, एक प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए इंस्पेक्शन का, या फिर जांच करने का कि ओनली बढ़िया लोग ही आएँ, क्योंकि अगर स्कैम चलेगा, फ्रॉड चलेगा तो देखो सबका लॉस हो जाएगा, पूरा H1B ही बंद हो जाएगा। उससे फिर जो टैलेंटेड लोग हैं वो भी नहीं आ पाएंगे, फिर वो अमेरिका को फ़र्क पड़ेगा। तो पूरा का पूरा बंद करने की जगह कुछ ज़्यादा एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि टैलेंटेड लोग आएँ। सारे लोग, अगर स्कैमर्स आएंगे, फ्रॉडस्टर्स आएंगे H1 पे तो प्रॉब्लम की बात है। पूरा बैन नहीं होना चाहिए, सिर्फ फ्रॉड के अगेंस्ट बैन होना चाहिए। टैलेंटेड लोग अभी भी आना चाहिए। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई अगर यूनिवर्सिटीज़ में टैलेंटेड लोग नहीं आएंगे तो हम एजुकेशन कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो मैं एग्री करता हूँ, टैलेंटेड लोग आर मोस्ट वेलकम बट फ्रॉडस्टर्स आर नॉट वेलकम। तो उसका कोई और तरीका होना चाहिए, कोई और जुगाड़ होना चाहिए कि भाई इन्वेस्टिगेशन का या फिर इंटरव्यू का कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि भाई फ्रॉड ही रुके, टैलेंटेड लोग ना रुके। ये थी आज की वीडियो गाइस। एक शॉकिंग न्यूज़ ये आई कि फ्लोरिडा के बाद टेक्सास भी एक ऐसी स्टेट हो गई है जहाँ पर May 2027 तक वीज़ा H1B वीज़ा बैन हो गए हैं इन स्टेट कंपनीज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़। वीडियो को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे।